So today our topic is compartmentization of eukaryotic cell. So we all know that the prokaryotes and eukaryotes are having different structures. In case of prokaryotes, there is no compartmentization, but in case of eukaryotes, we are having compartments. But this is the cell compartmentization. As we know that cell is the basic building block of life. It is the efficiency of this cell which do several jobs, like in case of prokaryotes as well as eukaryotes. In both cell types, they do different jobs. So but in case of prokaryotes, all the job is done by single membrane unit, because there is no compartmentization or there is no other organelle present in the cytosol. लाइक जैसे कि हमारे पास कंपार्टमेंटाइजेशन क्या होगा, जैसे हमारे पास एक बड़ी ट्रेन है, ठीक है। समझो ये हमारी जो बड़ी ट्रेन है ये एक सेल है, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। लाइक एक पेंट्री का काम करता है, दूसरे में वॉशरूम है, कहीं पे पैसेंजर्स है। इन पैसेंजर्स में भी क्या है, एसी वाले पैसेंजर्स है, दूसरे बी वाले पैसेंजर्स है जिनमें एसी नहीं होता। मीन्स ऑल टुगेदर ये क्या है, ये ट्रेन एक सेल मानी जाती है। इसमें जो ये छोटे छोटे ट्रेन में जो कंपार्टमेंट्स है, एज्यूम करते हैं ये हमारे ऑर्गेनली है। तो जो हमारी ट्रेन के डब्बे है, इट वेरीज फ्रॉम वन मतलब बॉक्स टू अनदर बॉक्स। पेंट्री है जैसे, उसका अपना काम है। एसी वाले जो लोग हैं उनका अपना काम है, वो अपनी तरीके से रह रहे हैं। या जो बी ये है बी ब्लॉक वाले, जो बी इसमें बी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका भी अपना काम है। मीन्स ट्रेन का जो हर एक डब्बा है वो एक दूसरे से वैरी करता है। सिमिलरली जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो एक कंप्लीट फैमिली है, लेकिन विद इन द फैमिली देयर आर डिफरेंट फैमिली मेंबर्स विच आर हैविंग देयर इंडिविजुअल रोल। ठीक, that role is played by our organelles. We are having different types of organelle present in our cell, in eukaryotic cell. But in case of prokaryotes, we don't have such type of organelle present. There is a single membrane unit, that is the that is our prokaryotic plasma membrane. That is our prokaryotic plasma membrane. As you can see in the diagram, there is no separation of organelle, because within in the cytoplasm of the prokaryotes, everything is present. Like nucleoid is there, that is the space where the genetic material of the prokaryotic cell is present. In the cytoplasm it is. So we are having ribosomes, so it's embedded in the cytoplasm only. But if you will see on your screens that in case of eukaryotes, it when we look at this eukaryotic cell, it's a complex in nature. It seems it is a complex in nature, and there are different membrane bound organelles. There are membrane bound organelles which perform their specific function, which perform their specific functions. Why there is the compartmentization of the cell? This ये जो compartmentization होता है ये क्यों है? This is only because to increase the efficacy of the cell. क्योंकि अगर जैसे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो भी सारे फंक्शंस है वो एक ही सेल कर रही, एक ही जगह पे हो रहा है। बट लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वो कॉम्प्लेक्स है। तो अगर एक ही सेल, फॉर एग्जांपल समझो कि यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता, तो क्या होता, इधर से प्रोटीन बन रहे, इधर से एंजाइम हो रहे, इधर से हमारे पास लाइसोजाइम्स है डिग्रेड हो रहा है। तो सिस्टमैटिक हमारे जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। टू अवॉइड सच सर्कमटेंसेस, to increase the efficacy of the cell, there is the compartmentization in the eukaryotic cell. So लेकिन ये जो पहले था, मतलब as we know that the we eukaryotic have originated from the prokaryotes. This is the simple diagram how the occurrence of compartmentization takes place from the prokaryotic to eukaryotic cell. सिंपली जो पहले हमारे पास क्या थी सेल, प्रोकैरियोट्स थे। ठीक, एज वी से कि जो हमारे पास हमारे पास एनारोबिक कंडीशंस थे पहले, वी वर नॉट हैविंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। तो उस टाइम पे क्या थी हमारी ये जो है हमारी ये वाली सेल एंसिस्टर प्रोकैरियोट्स, ये एग्जिस्ट हुई।
फिर उसके बाद विद द इवोल्यूशन देयर वाज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर वाज इनफोल्डिंग ऑफ plasma membrane, and the first developer organelle was there the nucleus. As you can see in the diagram, पहली जो organelle बनी यूकैरियोटिक सेल में वो क्या बनी, membrane bound organelle, वो कौन सी बनी हमारी, न्यूक्लियस. फिर उसके बाद ये साइनोबैक्टीरियम आया. साइनोबैक्टीरियम इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया था, नहीं सॉरी उसके पास क्लोरोप्लास्ट था. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ने क्या दिया अपना, मतलब वो क्या जनरेट करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आ गया, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, दिस इज जस्ट अ थ्योरी, ओके. But we matlab not we but scientists believe on this theory, so that is why we are discussing here. Then the aerobic bacterium came, they are having the mitochondria in it. So then the ancestral जो eukaryotic cell है वो algae बनी पहले, जो हमारी ancestral eukaryotic cell है, then वो algae बनी, उसमें chloroplast भी था, उसमें mitochondria भी था, and they were having well developed membrane bound nucleus. So this was how compartmentization occurred in the evolution. We all know we are having two types of cells, ये हमने पढ़ा already. So prokaryotes are, we know that prokaryotes are unicellular organisms. They don't have any, like they don't have any organelle. There is lack of the nucleus, mitochondria, and other organelles. So but in case of eukaryotes we are having well developed organelles. This increases our efficacy of the cell functioning. So in each, if we will see the each organelle, they create a specific microenvironment where cells are able to give its best. For example, अगर हम लोग ये लेंगे, एक और डायग्राम सामने लेंगे, like we are having the now the parts of the eukaryotic cell. हर एक जो इसका ऑर्गेनली है वो क्या है, वो एक छोटा माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. क्या करता है वो, क्रिएट एक माइक्रो एनवायरनमेंट. हर एक जो ऑर्गेनली वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती है. मींस जो एक ऑर्गेनली फंक्शन करती है वो दूसरी ऑर्गेनली नहीं करती है. अलबत्ता जो एक ऑर्गेनली का प्रोडक्ट होता है वो दूसरी ऑर्गेनली के साथ मिलके फिर आगे जाके फर्दर प्रोसेसेस करते हैं जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं. लाइक हमारे पास जैसे ऑर्गेनलीज है विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन, लाइक हमारे पास एक ऑर्गेनली ऐसी ऑर्गेनलीज है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है. अब हम लोग किन की कंपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी नाउ वी आर इन द यूकैरियोटिक सेल. हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्रिएट बनाते हैं. वो कौन कौन से हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, सेंट्रियोल आर देयर, वन, फ्लैजिला आर देयर, सेकेंड, थर्ड इज आवर साइटोस्केलेटन. जो हमारे कंपार्टमेंटाइजेशन है ना उसमें बहुत सारे अलग अलग इन्होंने कैटेगराइज किया, जो हमारे ऑर्गेनली प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, उनको हम लोग ने अलग अलग तरीके से क्या किया, क्लासिफाई किया. लाइक हमारा फर्स्ट एलिमेंट है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मीन्स जो स्ट्रक्चर में हमारे काम आता है वो कौन कौन से है, सेंट्रियोल, फ्लैजिला विच इंक्लूड्स आवर सीलिया एंड माइक्रोविलाई, एंड साइटोस्केलेटन. जो हमारा सेंट्रियोल है, वी ऑल नो दैट दिस सेंट्रियोल इज ऑन दी सेंट्रियोल वी आर, मतलब these centrioles are involved in the cell division where chromosome moving takes place. Go centriole का function. Then the flagella, motility और moving fluid over the surface, ये motility में हमारे काम आता है. Then the cytoskeleton, it gives us the structural support and it helps in the cell movement. These are the three elements which come under the structural organelle. Then another organelle is there, another system is there, where we call this system as a endomembrane system. We call this as a endomembrane system. What is endomembrane system? Endomembrane system जो है हमारा वो मतलब मेम्ब्रेन्स का बना है. जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में है वहाँ पे बहुत सारी मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई है. तो उस जो फ्यूजन है एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन के साथ, उनको बोला जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. So endomembrane system is a system where many membrane of the organelles are joined together, where many
membranes of the other organelles are joined together. अब ये जो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इनमें कौन कौन से मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं? लाइक इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वी आर हैविंग फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा आउटसाइड जो सेल का है, दैट इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकेंड क्या आता है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. थर्ड न्यूक्लियस. फोर्थ गोल्जी बॉडी. एंड फिफ्थ इज आवर लाइसोसोम्स. अगेन आई विल रिपीट, जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम it is composed of plasma membrane, endoplasmic reticulum, nucleus, Golgi apparatus, and lysosomes. As you will see in further lectures, that the जो हमारा plasma membrane or the nuclear membrane of the nucleus is as you can see here, where I have a cursor, the nuclear membrane is interconnected at many places with the endoplasmic reticulum. As you can see where I am pointing out, so the nuclear membrane or nuclear envelope is interconnected with the endoplasmic reticulum. Then this endoplasmic reticulum is at many places it is interconnected with the Golgi bodies. It is interconnected with the Golgi bodies. The whole membrane system, starting from the nuclear membrane up to the Golgi bodies, will include our endomembrane system. Plus, it includes our plasma membrane and plus the lysozymes. In further lectures, you will be able to learn how lysozymes are formed. These are formed only from the Golgi apparatus. That is the reason we include our lysozymes in the endomembrane system. Again, मैं repeat करूँगी, जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वो इंटरकनेक्टेड है किसके साथ? It is interconnected at many places with the endoplasmic reticulum. Then endoplasmic reticulum membrane is at many places it is connected with the Golgi apparatus. The whole membrane system, which is interconnected with each other, is called as endomembrane system. In endomembrane system, we also include plasma membrane and the lysozymes. Now, what is the function of our plasma membrane? What it helps in cell-cell communication. It regulates passage of material from inside to outside and outside to inside. Basic function. Now, if we will talk about the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum are involved in the protein synthesis. Or if we will talk about smooth endoplasmic reticulum, they are involved in the synthesis of sterols, phospholipids, fats. So it means every organelle are having different functions. Now the nucleus. We can call nucleus as a control house or control center of the cell. From nucleus, the DNA is getting transcribed into the RNA. Then RNA from nucleus is moving out into the cytoplasm where it gets translated. It gets translated on ribosomes. We know that ribosomes are either present on the membrane of the endoplasmic reticulum or these ribosomes are freely moving in the cytoplasm of the cell. जो ये हमारा mRNA न्यूक्लियस से बाहर आया कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. या तो वो मतलब अब इसको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है. मीन्स RNA हैज़ टू गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन. ट्रांसलेशन प्रोसेस. ये ट्रांसलेशन प्रोसेस किन पे हो रही है? ये ट्रांसलेशन प्रोसेस राइबोसोम्स पे हो रही है. राइबोसोम्स की लोकेशन क्या है इसमें साइटोप्लाज्म में? Either these ribosomes are freely in the cytoplasm or these ribosomes are attached on the outer surface of the endoplasmic reticulum. तो it means दो अलग अलग जगहों पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. या तो साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है या तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रहा है. नाउ द गोल्जी बॉडीज है ना, जो हमारा नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पार्ट है. इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है राइबोसोम्स में,
वो फिर उनके ल्यूमिन में चला जाता है. द स्पेस विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज द ल्यूमिन. जैसे सैक होता है ना, बैग लाइक, ये जो एंड ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बीच में एक अंदर स्पेस होती है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द ल्यूमिन. ल्यूमिन से प्रोटीन होते होते फिर गोल्जी बॉडीज में जाता है, जहाँ पे इन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है एक्सपोर्ट के लिए. इधर इनको सेल में ही रहना है, या तो ये सेल से बाहर भी जाएंगी ये वाले प्रोटीन्स. नाउ द लाइसोजाइम्स. लाइसोजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग. तो ये जो हमारे सेल डेब्रीज या कुछ ये जो हमारा जो रहता है, मतलब सेल डेथ या ऑर्गेनली जिनकी डेथ होती है, लाइसोजाइम्स उनको सिंपली क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. दिस वॉज अबाउट द सेकेंड system, that is our endomembrane system. First was structural elements, second is endomembrane system, third we are having the energy producing organelle. हमारे मतलब यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसी ऑर्गेनलीज है जो इन्वॉल्व है कहाँ पे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग में. लाइक वी आर हैविंग द क्रोमोसोम्स और वी आर हैविंग द न्यूक्लियस. Sorry, I'm talking about the gene expression. Gene expression. For we are talking about the energy producing organelle. That we all know energy कहाँ से produce होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से. Mitochondria is the, हाँ exactly, mitochondria is the powerhouse of the cell where ATP synthesis takes place. Now अभी हमारे पास कुछ ऐसे organelle है जो जीन एक्सप्रेशन में काम आता है. लाइक न्यूक्लियोलस इज दियर, वो एक्सप्रेस कर रहा है, या क्रोमोसोम्स आर दियर, या राइबोसोम्स आर दियर. क्रोमोसोम से क्या होता है, क्रोमोसोम्स हमारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. न्यूक्लियस जहाँ पे असेंबली ऑफ राइबोसोम, न्यूक्लियोलस जहाँ पे असेंबली राइबोसोम सिंथेसिस हो रहा है. तो राइबोसोम्स जहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है वो बाहर आ रहा है, फिर वो कंप्लीट स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं राइबोसोम्स का. फिर जो ये राइबोसोम्स है इन पे क्या हो रहा है हमारा, इन पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इन पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. दिस वाज अबाउट द, so we discuss this thing that different organelles are having different roles. So different role is because they matlab cell want to increase their ability or give their best functioning. We all know that every organelle is having their crucial role in the cell. Like we just discuss all the different organelles, all these organelles are absent in the prokaryotes. इट मीन्स उनका जो हमारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनली है वैसी कोई ऑर्गेनली पाई नहीं जाती है प्रोकैरियोट्स में, और उनका फंक्शनिंग भी वैसा नहीं है. बट स्टिल वी आर हैविंग सम सिमिलैरिटी बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. It's not मतलब it is different, obviously we don't have such sophisticated organelle present in the prokaryotes, but still we share some similarity with the we share some similarity with the prokaryotes. Like first striking point is the genetic code. First striking point is the genetic code. We all know that we are having three मतलब ये three nucleotides code for one amino acids. So this, it is said that the genetic code is universal. It is said that the genetic code is यूनिवर्सल. अगर हम लोग जीन को उठाएंगे जो किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, उसको डालेंगे इंसेक्ट में, वो वहाँ पे भी वही अमाइनो एसिड क्रिएट बनाएगा जो वो यूकैरियोट्स में बना रहा है. इट मीन्स जीनोम जो है हमारा, जो अमाइनो एसिड्स फाइनली बनाते हैं, वो सीक्वेंस सेम है. दैट इज़ द रीज़न वी कॉल दिस जेनेटिक कोड एज अ यूनिवर्सल. भले ये प्लांट्स में हो, यूकैरियोट्स में हो, प्रोकैरियोट्स में, ये जो हमारा जीन है जो उसकी कोडिंग है वो सिमिलर है, starting from the prokaryotes to the higher eukaryotes. Even हमारा जो plasma membrane है, plasma membrane of the prokaryotes and the plasma membrane of the eukaryotes, they are having similar composition. They are having similar composition. Like if we'll talk about the cell wall is absent in case of eukaryotes except the plant cell, but the plasma membrane, they are having similarity. The plasma membrane of the prokaryotes and the eukaryotes are similar in nature. Like in case of both we are having, in both we are having like phospholipids. ठीक,
फॉस्फोलिपिड्स है, मीन्स लिपिड्स है, और उनके बाहर वाले साइड से क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। और बोथ इन बोथ केसेस DNA जो है in both prokaryotes as well as eukaryotes, they are getting transcribed into the RNA. Then they are getting translated from RNA into the proteins on the structures called as ribosomes. Means एक तो जेनेटिक कोड इनका सेम है, सेकंड सेल मेम्ब्रेन है, और जो इनका जो ये है मतलब फ्रॉम DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, वो सिमिलर फंक्शन है। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों में होता है ऑन द राइबोसोम्स। ये इनकी सिमिलैरिटी है। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो एक बैलेंस क्रिएट करती है, लाइक इट मेंटेन्स सच अ बैलेंस दैट इज व्हाट आई विल से, ये जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है ये एक होम्योस्टैटिस बैलेंस क्रिएट करती है। जो ये ऐसा बैलेंस अपने अंदर रखती है, वो बेस्ट एनवायरनमेंट होता है हर एक ऑर्गेनेली को फंक्शनिंग के लिए। इट मीन्स जो हमारी ये यूकैरियोटिक सेल है, इट मेंटेन्स होम्योस्टैटिस स्टेट ऑफ द सेल। दैट state is suitable for all the organelles, where these organelles are able to give their best function, like the cell we are having. If photosynthesis and other processes, metabolic processes are going inside the cell, so obviously waste products will be there. This cell have ability to export these waste products from inside to outside. जब एक सेल मेटाबॉलिज्म कर रही है, either anabolism or the catabolism, while these processes there is the formation of some waste product. So this cell have ability to export these waste product from the inside to outside, and even this cell has ability to import fuel like energy or glucose or fluid or oxygen from outside to inside the cell. So जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है सेल में, so this plasma membrane allows water, oxygen, carbon dioxide to pass through by osmosis process. जो हमारी मतलब लाइक जो ये हमारा होम्योस्टैटिस है, उसमें क्या होता है, चीज़ें अंदर से बाहर आ रही है, बाहर से अंदर आ रही है, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है विद इन द सेल। ये इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि ये इतना अच्छा सूटेबल होता है बाकी ऑर्गेनेलीज के लिए कि हर एक ऑर्गेनेली अपना बेस्ट देती है फंक्शनिंग में। ये जो बाहर अंदर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट चीज़ें हो रही है, these processes are occurred by either passive or active mode of transportation. Like passive में क्या होता है, चीज़ें आती है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे पानी सेल के बाहर है वो अंदर आ रहा है विद वाया द पैसिव मोड, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा रहा है। या तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, लाइक हमें वहाँ पे ATP अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ करना पड़ता है, ATP जहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो इस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वायर सेल्स यूटिलाइज एनर्जी to take the molecules against the concentration gradient. So this active type of transport is having three major types. जो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसके 3 टाइप्स है: pumps, channels and transporters. We have to discuss what we are discussing in this lecture. We have to discuss every point in the detail in further lectures. जो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें क्या है, 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है: पंप्स, चैनल एंड ट्रांसपोर्टर्स। जो ये हमारे पंप्स है, ये सिंपली एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ला रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पंप ना, पंप कितने आसान जो हमारा है ना हैंड पंप, समझो कि हम लोग प्रेशर यूज़ करें, ATP यूज़ करें, फिर प्रेशर को छोड़ रहे, मॉलिक्यूल अंदर आ रहे विद द हेल्प ऑफ ATP। देन चैनल्स, ये जो हमारी चैनल्स होती है, इनमें गेट सिस्टम होता है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दीज गेट्स गेट ओपन अप, फिर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। थर्ड इज वी हैव टू डिस्कस everything in detail, okay, in this unit only.
देन द ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, वो एक ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, एक चीज़ उठाता है दूसरी जगह पे लेके जाता है। सिमिलर वे जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। ये एक जगह से चीज़ उठाते हैं, कैरी करते हैं, फिर दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक, ये हमारा हुआ कि हाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है, दे आर हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक नेचर एज वेल एज हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। जो हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसमें डबल लेयर है। जो बाहर वाला फेसिंग है इसका, उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। जो वाटर लविंग है उसको क्या बोलता है, हाइड्रोफिलिक। और जो हमारे इसके फैटी एसिड्स है जो इनर साइड से है, दैट इज आवर हाइड्रोफोबिक, वो वाटर हेटिंग है। दिस इज द हाउ द कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स टेक्स प्लेस।